Yes, Hetal, what we have done in last session, what was done? Have we started third book or we were on second book only? Okay, okay, fine. So we'll just. Mhm. Okay. You know Urdhva Sutra, right? Crisscross method I have taught you. Okay. Uh, okay. So in crisscross only we have like 5 digit, 6 digit also we can do. I'll teach you that so that bigger number also it will be easier for you to understand. Let's start that. As we have seen the Urdhva Sutra, Urdhva is crisscross method of multiplication. So it will be like if these are the digits, if suppose these dots are the digits. So first step will be this crisscross of these two, correct? Then this is the second step I'm teaching you. This will be the crisscross second step. This is first one, this is second one, and the third one will be this two, correct? Yes. So this is how we know for two steps. Same way, three digit, 4 digit also we can do. I'll just teach you that. It will be easier for you to understand. And secondly, it will be easiest method for calculation also. It's suppose three digits are there. Okay. These are the digits suppose. So first will be the vertical. That is, you know that, correct? Am I audible? Okay. This will be the first step. Okay. Now, second step will be crisscross of these two, correct? And then it will be extreme left to extreme right, crisscross, and middle will be the vertical. Okay. And then once we clear with this, it will be crisscross of this two. We have to separate the left side one. Okay. Yes, these two will be the crisscross and last will be vertical of this. So how many steps we have followed? 5, correct? Yes, this will be the first step. Acha, okay. Okay. See, this is the first step. Second, correct. Then it will be 100 and unit. Same way crisscross and tens will be the vertical multiplication. Yes. Yes, answer will be the added only, right? I will solve one, two examples also. I'm just briefing you the concept first so that it will be. Now, once this is done, okay. Hmm. If suppose, see, this is the question. Suppose I'll change the digit so that it will be easier. Okay. This is the question. So, what will be the first step? This is the first step. 4 ones are 4. Correct. Now, this will be 5 ones are 5. 6, so it will be 11. So what we have done, we have added this two multiplications, correct? Same way it will be extreme left to extreme right and vertical. So 6 ones are 6, 4 threes are 12, it will be 18, 18 and 10, it will be 28, correct? Now once this is done, this two will be calculated. 6 twos are 12, 5 threes are 15. So 15 and 12 will be 27. And last will be
6 threes are 18. Yes, I'm just writing it here. So this is the last. Now you know how to do calculation of this too. Correct? Separations of this. Yes. You just have to keep in mind one thing. If the digits are 6, answer should be 5. Okay. One, 2, 3, 4, and 5th. It should be Anur Pena. Okay. It will be like 6. 6 of the digits are there. How we have seen E Kadikena. Correct? E Kadikena means one more. And what is E Kayuena? E Kayuena means less one. Yes. So it should be less than the digits. What was the question you remember? It was in book? Okay, okay. No, no. Okay. So solve one question of this question. 814, 216. This is the book question only so that you can verify the answer also. First, solve it on yourself. Correct. Understood? Answer is 175,824. It takes less than 1 minute to solve this with this method. Correct? अब यही चीज हम बेस से भी कर सकते हैं, यही चीज हम इससे भी कर सकते हैं. दिस विल बी द इजीएस्ट मेथड. बच्चों को सिखाने के हिसाब से दिस इज द इजीएस्ट मेथड, क्योंकि इसमें मिस्टेक अगर कर भी दिया बच्चे ने, बाय मिस्टेक अगर कैलकुलेशन भी मिस्टेक है, ही कैन वेरीफाई इटसेल्फ कि कहाँ पे मेरा मिस्टेक हो गया है। कोई स्टेप भी मिस हो गया है, ही कैन चेक इमीडिएटली। तो ये बेनिफिट बच्चों को अगर सिखाना है, सो दिस विल बी द ईज़ीएस्ट, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 डिजिट 4 डिजिट नहीं, एन नंबर ऑफ डिजिट्स आप कर सकते हो। इट कैन बी 6 डिजिट्स इंटू 6 डिजिट आल्सो। इफ सपोज यू वांट टू ट्राई, यू कैन ट्राई इट आउट फॉर 4 डिजिट. हाउ विल यू मैनेज 4 डिजिट, टेल मी? करेक्ट, करेक्ट. हुँ, हुँ. देन you just have to move further. Exactly. Very good. Then we will move one step further. It will be 4 ones are, 6 twos are, and 3 twos are will be vertical. Then again we will move one step further, crisscross of units and tens digit, and then vertical. So in that way it will be 7 steps. Correct? Just solve this question and answer me. Yes. Okay. Mm. 100,274. Correct. You can check it out, like verify also the answer. It is the same. So this is how you can do 4 digit, 5 digit, 6 digit. You just need to understand the concept first. Correct? Yes.
Yes. So it can be, if suppose there are this digit is not there, then how will you manage? Exactly. Then you can do this, but this will be the, yes, you have to write down, or else the multiplication, the answer will be wrong. You can check it out that way also. आप जीरो निकाल के ऐसे ही कैलकुलेट कीजिए तो भी आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा. सो इट इज बेटर कि जहाँ पे रिक्वायरमेंट है फुलफिल करना ही है, मिसिंग प्लेस को हमेशा फुलफिल करके रखिएगा. ठीक है. सो थर्ड स्टेप इज ऑल, बुक नंबर 3 इज ऑल अबाउट दिस क्रिस क्रॉस ऊर्ध्वा सूत्र ओनली. नाउ इफ सपोज द क्वेश्चन इज इन डेसिमल नंबर्स, ओके, 43 multiply by 76. ठीक है, write out this. एग्जैक्टली, करेक्ट. सो दिस इज द बेसिक थिंग, बच्चों को समझाने के लिए भी हमें यही चीज बतानी है कि जब आप आंसर लिख रहे हो, यू जस्ट हैव टू कैलकुलेट दिस. क्रिस क्रॉस वाइज आप कैलकुलेट कर लो, जो भी आंसर आता है डेसिमल 2 डिजिट के बाद आपको लगा देना है. दिस इज हाउ यू कैन डू डेसिमल्स आल्सो. तो वो तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, सिर्फ ये है कि हाँ क्लियरेंस होना जरूरी है. ऐसा ना हो कि ये बताया नहीं था तो ये मुझे नहीं पता चला. अब एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, पावर ऑफ 10. ओके, न्यू टॉपिक है, बेसिक चीज है इसमें भी. मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्पेशल केसेस जो बुक के अंदर दिया हुआ है, दैट इज द टॉपिक नेम इज मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्पेशल केसेस. ओके, रूल, सूत्र व्हाट यूज्ड इन दिस इज अंत्ययर दशके. अंत्य मीन्स एंड, एंड दशके मीन्स 10. सो द पावर ऑफ 10. सो इट, सपोज दिस, इफ दिस इज द क्वेश्चन, आप देखोगे एंड दिस इज द 10, करेक्ट, और आगे के जो डिजिट है वो सेम है, सो इट कैन बी 64 into 66. दिस कैन ऑल्सो बी द केस इन दिस पर्टिकुलर थिंग, बिकॉज आगे के दोनों डिजिट सेम है और पीछे के दोनों डिजिट का एंड 10, कैलकुलेशन 10 हो रहा है. सो दिस इज अंत्ययर दशके. ओके, अब इसका मीनिंग क्या होता है और इसे सॉल्व कैसे करते हैं वो समझते हैं. पहले बुक का ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, सो दैट आप वेरीफाई करो, जब भी आप रिवीजन करो तो आप वेरीफाई कर सको आंसर को. अब फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको क्या करना है, ये जो सेम डिजिट्स है उसमें आपको एक डिजिट ऐड कर देना. मीन्स थ्री थ्रीजा है, आपको थ्री फोरजा कर देना है, यहाँ पे +1 कर देना है. इज दैट क्लियर? और फिर ये दोनों का मल्टीप्लाई कर देना है. सो 4 3 12, एंड दिस टू यू हैव टू डू मल्टीप्लिकेशन, इट विल बी 21. सो दिस इज द आंसर. अंडरस्टूड? आगे के तो दोनों डिजिट सेम है, यू जस्ट हैव टू डू ई का दिकेना, करेक्ट. सो वो हो जाएगा, जो भी डिजिट दिया है +1 करके उसको मल्टीप्लाई करना है और पीछे के दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई कर देना है एज इट इज. और एक एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं आपको. 52 into 58, अभी आप ये वर्बली भी कर सकते हो. 8 2 जा 16, 5 6 जा 30. तो ये आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट. इतना भी करने की ज़रूरत नहीं, एग्ज़ैक्टली. क्वेश्चन को देख के आप आंसर पता कर सकते हो. वैदिक मैथ्स इज़ ऑल अबाउट ऑब्जर्वेशंस. आप कहाँ पे मेयर ऑब्जर्वेशन से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो और कौन-सा सूत्र लगाने से आपकी चीज़ें आसान हो सकती है, वो आपको याद रहना चाहिए बस. दैट इज़ ऑल अबाउट वैदिक मैथमेटिक्स. नो डाउट बहुत सारे मेथड्स हैं. हम सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के अगर गिने ना तो 12 से 15 मेथड तो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन के लिए है. बट इज दैट एवरीथिंग यूजफुल फॉर एवरी क्वेश्चन? नो. कोई चीज बेस से नजदीक है, निखिलम लगा दीजिए. कोई चीज क्रिस क्रॉस से आसानी से हो सकती है, क्यों निखिलम लगाए हम उसके लिए, करेक्ट. अभी जैसे ये है अंत्य दशके से हो सकती है, तो हम क्रिस क्रॉस भी क्यों कर. उर्दवा भी डिफिकल्ट हो जाएगा ये चीज के लिए. सो इट इज ऑल ऑब्जर्वेशंस.
उसके लिए प्रैक्टिस ज़्यादा ज़रूरी होगी क्योंकि जब देखोगे ना क्वेश्चन तो समझ में आने के लिए आपका रेगुलर प्रैक्टिस में रहना ज़रूरी है। मेरा जो मैंने आपको वीडियोज़ का अटैचमेंट आपको भेजा है, आई विल जस्ट अपडेट दैट अटैचमेंट मैं आपको आज ग्रुप में अपडेटेड वीडियोज़ की भी अटैचमेंट भेज देती हूँ। आप उसके एवरी वीडियोज़ देखिए। मेरा मैक्सिमम टाइम जो पूरा अपना वैदिक मैथ्स है ना, वो पूरा मैंने रिकॉर्डेड वीडियोज़ में एक्सप्लेन किया है टॉपिक वाइज़ मोर देन 100 प्लस 120 प्लस वीडियोज़ है मेरे उसमें। कॉन्सेप्ट मैंने एक-एक एक्सप्लेन किए हैं बिकॉज़ उसमें कैसे रिविज़न करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप जो टॉपिक का बुक ओपन करके बैठे हो, उसका वर्कशीट ओपन करके बैठे हो, वही टॉपिक आप ओपन कीजिए, उसमें वीडियो को एक्सप्लेनेशन समझिए और सॉल्व कीजिए। आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा और रिविज़न आपको सेल्फ स्टडी के लिए इट विल बी वेरी बेस्ट बिकॉज़ मेरे मुझे जहाँ तक ज़्यादातर लोगों की जो क्वेरीज़ आई थी ना उसमें यही था कि मैं ऑलरेडी अभी जैसे अपने भी ग्रुप में देखिए मोर देन 10-12 टीचर्स हैं हम लोग, लेकिन जॉइन करने के टाइम पे कोई अवेलेबल नहीं होते हैं। बिकॉज़ टाइम निकालना इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर एवरीवन पर्टिकुलर टाइम पे नहीं सब अवेलेबल होते। तो वो ही रिक्वायरमेंट पे मैंने ये वीडियोज़ बनाए हैं कि जभी भी आपको टाइम मिले आप आपके कंफर्ट ज़ोन में बैठ के अपना-अपना वीडियो देखिए, सेल्फ स्टडी कीजिए, कोई भी डाउट आता है आस्क मी आई एम हियर ओनली। डाउट सॉल्विंग के लिए आप कभी भी मुझे बताइए मैं अवेलेबल रहूँगी। सो हेंसफोर्थ यू कैन डू दिस वे आज हम जितना भी पढ़ रहे हैं, इसके आगे के सारे वीडियोज़ आप उसमें देखो। कुछ भी डाउट आता है पूछो, आई विल बी हियर ओनली हम लोग रेगुलर जभी भी पढ़ते हैं हम डाउट सॉल्विंग करेंगे उसमें। एक्सप्लेनेशन आप उसमें देख लो तो आपका टाइम भी बचेगा और आप घर पे जब पढ़ाई करोगे ना इट विल बी ईज़ीएस्ट फॉर यू टू अंडरस्टैंड। इसका सॉल्व करो, देख के कर सकते हो अभी आप बोलने भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वेरी गुड। ऐसे ही सेल्फ स्टडीज़ के लिए ना आपको ये सब आसान हो जाएगा करना। 6 5 ज़ा 30 9 1 ज़ा 9 3009 अब एक चीज़ आपको ये तो कॉमन सी बात है हम 2 डिजिट मल्टीप्लाई कर रहे हैं सो आंसर शुड बी इन 2 डिजिट 3009 हो जाएगा। करेक्ट 309 आप यहाँ पे नहीं अप्लाई कर सकते। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ़ 2 डिजिट में ही चले। आपका अगर क्वेश्चन है 1112 1118 आप इसे भी सेम वे में कर सकते हो। दिस इज़ 1 इसे भी आप सेम वे में कर सकते हो 8 2 ज़ा 16 यहाँ पर आपका हो जाएगा बट येस यू शुड रिमेंबर 111 को 112 से हमें कैसे करना है अब ये चीज़ हमने पहले की है 11 से 111 से कोई भी चीज़ को मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं फर्स्ट डिजिट एज इट इज़ आ जाएगा फिर दोनों डिजिट का एक साथ हो जाएगा व्हिच विल गिव अस 2 देन ये 2 डिजिट को एक साथ करना है व्हिच विल गिव अस 3 बिकॉज़ वी आर डूइंग इकादिकेना एंड देन लास्ट डिजिट विल बी एज़ इट इज़ तो ये आपका आंसर हो जाएगा, करेक्ट? अब ये छोटा-सा टॉपिक था जो हमने बहुत स्टार्टिंग में अटेंड किया था 11 से मल्टीप्लाई करना। येस, तो वो याद रखना आपको ज़रूरी हो जाएगा तभी आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको काम आएगी ये चीज़ें। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ। बिफोर 16 जो 2 है, अभी इसमें हम ई का अधिकेना करेंगे ना? वी विल डू +1 सो दिस विल बी 2 नो? दिस विल बी 2 नो? करेक्ट? ओके। अभी 7 डिजिट 3 डिजिट जो भी मैंने बोला सेम कर सकते हो। आप ऐसे भी कर सकते हो 761 ये 1 कर देती हूँ इंटू 769 अब इसमें आपको डिफ़िकल्टी क्या होगी? यहाँ पे आपने ई का अधिकेना कर लिया। अब 76 इंटू 77 के लिए आप क्रिस क्रॉस कर लो, बेस मेथड कर लो, व्हाटएवर सूट्स यू, जो आपको क्विक लगे करना। करेक्ट? आपका ये एक हाफ पार्ट तो क्लियर हो गया, बचा आपका ये एक ही पार्ट करना। करेक्ट? अगर आपको स्क्वायर्स हाँ, अभी यही चीज़ में आपको और एक बेनिफिट क्या मिल जाता है, अगर स्क्वायर्स आपको पता है, 25 या 26 का स्क्वायर क्या होता है, तो अभी क्वेश्चन है 25 3 एंड इंटू 25 7 तो अब 25 का स्क्वायर आपको अगर याद है, आपको वही डायरेक्ट आपको क्रिस क्रॉस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो 625 है प्लस अब यहाँ पे अपने को ई का अधिकेना करना है, करेक्ट? सो 625 प्लस आपको 26 कर देना होगा क्योंकि ये +1 ही हम कर रहे हैं एंड देन दिस विल बी 21 देयर आर सो मेनी वेज़ कोई भी चीज़ को ना क्विकेस्ट करने का रास्ते तो बहुत मिल जाते हैं, सिर्फ याद रहना ज़रूरी है कि कहाँ पे कौन-सा रास्ता हमें अप्लाई करना है। आई होप इट इज़ क्लियर टिल नाउ।
करेक्ट। ठीक है, तो ये हमारा अंत्य-अर्दश सूत्र हो गया, जिसमें हमने सीखा पावर ऑफ 10। अब वैसे ही पावर ऑफ हंड्रेड्स भी हो सकते हैं। अभी ज़रूरी तो नहीं हमें हमेशा क्वेश्चन ऐसे ही मिले, जिसमें एंड हमारा टेंस में ही होता हो। 100 में भी हो सकता है, तो वो हम अभी देखो यहाँ पे क्वेश्चन है अगर 125 बुक का ही देती हूँ, 125 इंटू 175। अब आप देखोगे तो ये तो हो ही रहा है आपका 10, लेकिन आगे का रूल मैच नहीं कर रहा है, करेक्ट? आगे का जो अपना कॉन्सेप्ट था कि दोनों डिजिट सेम होने चाहिए, वो नहीं हो रहे हैं। बट इफ यू ऑब्जर्व, आप देखोगे तो ये दोनों का हो रहा है कैलकुलेशन सेम, और ये पॉलिसी भी मैच हो रहा है अपना, करेक्ट? आपका इसका टोटल क्या हो जाएगा? करेक्ट, सो दिस विल बी द पावर ऑफ हंड्रेड्स। एंड आगे के प्लस वन आप कर सकते हो, सो दिस विल बी टू वन जार टू। करेक्ट। और इसका जो आपको करना है 25 इंटू 75, वो आप कर सकते हो क्रिस क्रॉस ऊर्ध्वा सूत्र से, विच विल बी इजियर ऑल्सो। देख के कर सकते हैं, 7 टू ज़ा 14, 14 एंड प्लस 45 एंड 25। करेक्ट, सो आंसर आपका कितना मिल जाएगा? 14, 35 प्लस 10, so 45 and 25, so 5 7 8 1। ये आपका क्रिस क्रॉस का आंसर हो गया। 2 1 जा 2 आपको आगे ऑलरेडी मिल चुका है। करेक्ट, 21875। करेक्ट। सो ये सब छोटे-छोटे चीज़ ना आप बुक में भी देखोगे तो आपको आंसर भी मिलेगा। अब ज़रूरी नहीं है कि 25 और 75 ही 100 करता है अपना। आप 98 और 02 को भी ले सकते हो। अगर पीछे 98 है, 02 है और आगे का डिजिट ऐसा कुछ है 298 या 202, अब ये भी आप कर सकते हो। ये भी सेम ही हो गया। ये पीछे का आपका 100 हो रहा है, आगे का पॉलिसी मैच हो रहा है, तो इसमें +1 कर दो। 3 2 ज़ा 6 आपका हो जाएगा। इसको क्रिस क्रॉस कर दीजिए आप। 0 9 ज़ा 0 आना ही है आगे आपका आंसर में। 8 0 ज़ा 0 हो जाएगा, 9 2 ज़ा 18 हो जाएगा और ये 16। सो 16 का 6 एज़ इट इज़, 18 प्लस 1 आपको 17 कर देना पड़ेगा यहाँ पर। करेक्ट? 18 का 8 हो जाएगा यहाँ पर क्रिस क्रॉस में, एंड देन 2 8 ज़ा 16, सो 196 हो जाएगा यहाँ पर। करेक्ट? यस। सो दिस इज हाउ यू कैन डू सो मेनी क्वेश्चंस जो बुक में हमने दिए हुए हैं। छोटे छोटे यही कॉन्सेप्ट को समझ के, अभी यही सब चीजें आप देखेंगे ना यूट्यूब के ऊपर आपको मिलेंगे ट्रिक्स के नाम पे, लेकिन कौन सा सूत्र लगा, कैसे ये आंसर मिला, ये सब चीजें ना समझ में आएगी ना आपको कॉन्सेप्ट समझेगा। एंड विदाउट कॉन्सेप्ट अगर कोई भी चीज समझे ना वो बेसलेस हो जाएगा, उसका कोई मीनिंग ही नहीं है समझने के लिए। सो बेटर बुक्स नोट्स रेफर करके किया तो ही अच्छा है। अब और एक क्वेश्चन दे रही हूँ, अब सेम मेथड से आप ट्राई कीजिए। अगेन दिस विल बी, अभी इसको आप ऑब्जर्व करके बताइए क्या आपको इसका आंसर मिलेगा। एग्जैक्टली। क्यों? अच्छा अच्छा। 5 20, सो यहाँ पे हो जाएगा 50 40 1
क्या आंसर मिला? हाउ कम 5 2? 6 3 जा 18 हो जाएगा, 5 2 पहुँचे कैसे आप? नो, 2 2 5 3 5. व्हाई यू आर कैरिंग 2 प्लस 2 अगेन? 2 और 2, 1 और 1 वहाँ पे ही 2 आपको लिखना होगा ना? यू आर मेकिंग मिस्टेक हियर। आप ये जब इसको यहाँ पर लेके आए, तो उसका आपने 2 लिख दिया। हाँ, तो फिर वो तो एज़ इट इज़ वैसे ही लिख देना ना। करेक्ट, वो तो ये मैंने यहाँ पे जो लिखा है दैट इज़ ऑफ दिस कैलकुलेशन इकादिकेना। करेक्ट। सो 2 2 2 5 3 5 1 ओके। बुक के अंदर थाउजेंड्स पावर के भी हमने जो दिए हुए हैं या अंत्य दशकी, दैट इज व्हाट ओनली आई एम टॉकिंग अबाउट। एंडिंग विद 10, पावर ऑफ 100, पावर ऑफ 1000, ये भी सारी चीजें बुक के अंदर है। रेफर करो, एक एक सम को सॉल्व करो, नो डाउट इट विल टेक टाइम। एक दिन में नहीं पॉसिबल है, लेकिन आप एक एक्सरसाइज पकड़ो लेकिन उसको थॉरली सॉल्व करो सो दैट डाउट ना रहे और कॉन्सेप्ट जो भी किया वो क्लियर हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसका आधा किया था, इसका आधा किया, फिर कभी बाद में करने बैठे तो ना ये याद है, ना वो पूरा याद है। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो पकड़ा है वो अच्छे से याद करके एक ही कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लो पहले, ठीक है? यस। अब क्या करना है हमें, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग अभी अगर ये टॉपिक पे हमने स्टार्ट किया, तो थोड़ा कन्फ्यूजन बढ़ेगा। विल सॉल्व फ्यू क्वेश्चन ऑफ दिस थिंग ओनली सो दैट इट विल बी क्विकर विथ। अभी ये चीज़ हमने मल्टीप्लिकेशन बाय 11, ये मैंने पहले आपको एक्सप्लेन की है या नहीं की है, जो मैं अभी आपको बता रही थी? अच्छा, ओके, ठीक है। सो इज़ दैट क्लियर टू यू और शुड आई डू रिविज़न? बिकॉज़ अभी अपना नेक्स्ट आएगा मल्टीप्लिकेशन बाय 11 आल्सो। उसमें मल्टीप्लिकेशन बाय 11 भी होगा, 22 भी होगा, 33 भी होगा। सो रिविज़न होगा तो ही वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हुँ। Yes. So this will be D1. So 3 as it is, D1 plus D2 will give us 10 and D2 will be 7. So 7, 0, 4. Correct? So this is D1, D2. Yes. So this way only you can solve 3, 4 digit also. 2, 6, 4, 7. Multiply by 11. Solve this.
करेक्ट। नो, इट इज़ करेक्ट। ठीक है। अब यही चीज़ में अगर ऐसे दिया होता, यू हैव टू ट्राई दिस आल्सो सो दैट कन्फ्यूजन ना हो। जस्ट अ मिनट, आई विल जस्ट रब फ्यू स्लाइड्स। यही सेम क्वेश्चन को 1 1 1 3 टाइम 1 से कर रहा हूँ तो क्या करेंगे? क्वेश्चन वाज़ 2647 no? Try and tell me the answer. रॉन्ग, बिकॉज़ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था। अब यहाँ पे हमने क्या किया, D1 एज़ इट इज़ लिया, D1 प्लस D2 किया। थर्ड स्टेप विल बी D1 plus D2 plus D3 because there are 3 digits. So you have to concentrate on good. Correct. Very good. Correct. Exactly. And then last two, correct. And then D5 will be as it is. Correct. So ध्यान हमें क्या देना है, कितने 11 मतलब कितने वंस है उतने पेयरिंग हमारा होने चाहिए। दैट इज द बेसिक थिंग हमें इसमें याद रखनी है। अब अगर क्वेश्चन हो, आई गिव यू टू डिजिट फर्स्ट, 3131 मल्टीप्लाई बाय 22, तो कैसे करेंगे? 22, 22 is, what is 22? 22 is, हम्म, सो 11 आप इसमें देखिए, या तो दो चीजें कर सकते हैं, 31 इंटू 2 कर दीजिए, डबल कर देंगे, देन वट एवर यूल गेट 62 इंटू 11 आप कर सकते हैं। करेक्ट। या तो फिर 31 इंटू 22 दिया है, सो 31 इंटू 11 कीजिए, जो आंसर आ जाए उसको आप डबल कर दीजिए। करेक्ट। 31 इंटू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3 4 एंड 1। करेक्ट। 341, अब 341 इंटू 2 कर दीजिए। सो एनीथिंग व्हाटएवर यू फील लाइक कि मुझे ये फर्स्ट मेथड सही लग रहा है या सेकंड मेथड सही लग रहा है, जो भी मेथड आपको सही लगे, बट अगर आइडियली आप देखेंगे सो दैट दिस सेकंड मेथड विल बी इजियर, क्योंकि एक बार आंसर जब हमारे पास आ जाता है उसको डबल करने में हमें टाइम नहीं लगता है। यहाँ पे क्या होगा, क्वेश्चन को पहले डबल करो, फिर जो आंसर आया उसको फिर हमें
11 के साथ मल्टीप्लाई। सो यहाँ पे इट इज टू थिंग्स वी हैव टू कैलकुलेट, एंड यहाँ पे एक ही चीज आपको करना है। 11 से तो इट इज प्लस, यू जस्ट नीड टू ऐड थिंग्स, और जो आंसर आएगा उसको डबल करना है। डबल करना विच विल बी एनीवेज इजी देन डूइंग एनी अदर कैलकुलेशंस। सो कोई भी चीज को डबल करने में हमें टाइम नहीं लगती है। करेक्ट? क्लियर दिस मच? ओके, अब अपना जो अभी तक के जितने भी टॉपिक हुए हैं, उससे लेके अब तक कोई भी डाउट है उसमें से? आपके कितने उसमें से सम्स हो चुके हैं, या कुछ नहीं हुआ था जो क्लियर नहीं हुआ है इसकी वजह से अटके थे आप? ओके, करेक्ट। ओके, ओके, ठीक है। तो अभी तक इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आया है। अभी जैसे अभी हमने सीखा था मल्टिप्लिकेशन ऑफ 22, अभी जैसे हमने किया, वैसे ही 11 के मल्टीप्लायर्स कुछ भी हो जाए, अभी जैसे 31 इंटू 55, सेम एग्जाम्पल को मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो भी आप कर सकते हैं। करेक्ट। तो वो आपको कोई भी क्वेश्चन आप अगर कर रहे हैं ना, तो अभी सपोज 141 इंटू 22 आपको दिया है, तो आप यही क्वेश्चन को बुक्स में, तो यू विल गेट सो मेनी क्वेश्चंस, लेकिन आप यही क्वेश्चन को फिर आप ट्राई कीजिए 141 इंटू 33 करने के लिए। सेम क्वेश्चन को 44 ट्राई कीजिए। 121, अभी 121 के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? 11 11 जा 121, करेक्ट? तो सेम थिंग आपको इसका आंसर बाय 11 लाना है, जो आंसर आ गया उसको बाय 11 कर दीजिए, देन टू यू विल गेट। बट यस, प्रैक्टिस विल बी द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन वैदिक मैथमेटिक्स। जब तक आप प्रैक्टिस, कॉन्सेप्ट तो आप समझ भी लोगे, वन टाइम में क्लियर हो ही जाएगा, नो डाउट इन दैट, आई एम अश्योरिंग यू दैट थिंग। बट प्रैक्टिस अगर नहीं करोगे ना, आगे का नया चीज सीखते जाओगे, पुरानी चीजें भूलते भी जाओगे, दैट इज ऑल्सो माई गारंटी। कंटिन्यूएशन में अगर नहीं आया, 4 दिन भी अगर गैप किया ना आपने कोई भी चीज़ सीखने में या रेगुलर टचअप में, तो आप भूल जाओगे। आपको फिर ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा वापस कि लास्ट क्या सीखा था? अच्छा ये क्या था? तो चलो मैं पहले का भी देख लेती हूँ। फिर अगेन यू हैव टू, अभी तो ठीक है हम लोग अभी तो 3rd स्टेप पे पहुँचे। बट बाय द टाइम यू विल रीच 4th, 5th, 6th लेवल ना, आपको फिर आगे का सब भूलते जाओगे। बेसिक कॉन्सेप्ट भी आप भूलते जाओगे। तो वो ना हो इसके लिए मैं रिपिटेटिवली वही चीज़ बोल रही हूँ कि वो करना नहीं है हमें। हमें याद रखने हैं कॉन्सेप्ट अच्छे से। ठीक है? ओके, तो अभी अपना 3rd स्टेप में अगर हम लोग देखेंगे ना, तो हमने ऑलमोस्ट चीज़ें कवर कर ली है, क्योंकि 3rd बुक इज़ ऑल अबाउट ऊर्ध्वा सूत्रा एंड दिस मल्टिप्लिकेशंस ऑफ 11, 111 मल्टीप्लायर ऑफ 11, इसी से भरी है पूरी बुक, क्योंकि वो कॉन्सेप्ट आगे जाके बहुत ज़्यादा काम आने वाली बात है। तो इसके लिए 3rd बुक में ऑलमोस्ट वही है। सो आई विल आस्क यू टू डू ऑल द सम्स, रैंडम आप कीजिए। मैं ऐसे नहीं बोलूँगी कि आप पूरा खत्म कर दो एक ही दिन में, 4 दिन में मुझे पूरी बुक खत्म करके भेज दो। नहीं, यू स्टार्ट विथ 1 एक्सरसाइज, 5-6 सम उसमें से किए हैं, टिक आउट कर दो कि ये मेरे सम्स ऑलरेडी हो चुके हैं। फिर आप दूसरे सम्स करो, उसके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करो कि मुझे समझ में आया है या नहीं आया है। अगर उसमें भी प्रॉब्लम होता है तो पहले क्लियर करो। अब यही ऊर्ध्वा सूत्र से ही हम लोग अलजेब्रिक सम भी सॉल्व कर सकते हैं। तो वो भी ईज़ीएस्ट मेथड है अप्लाइंग ऊर्ध्वा सूत्र फॉर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। वो एक मैं सम आपको दिखा देती हूँ, व्हिच इज़ आल्सो बुक का ही सम मैं दिखाऊँगी, सो दैट आपको आसानी से समझ में आने लगे वो चीज़। ठीक है? 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 एंड 2x स्क्वायर प्लस 5। इसको आप क्रिस क्रॉस खुद से ट्राई करो पहले, कहाँ अटक रहे हो तो बताओ मुझे। प्लस 5, यस, ऊर्ध्वा, यस। First of all, you have to fill the missing place. Exactly.
So it will be become 4 only, no? So 3 twos are 6. 6x upon 4, that will be the answer, no? सेम वे, यस यस, रूल्स विल बी द सेम, कुछ भी चेंज नहीं होगा। आप अलजेब्रिक कर लो, आप पॉलिनॉमिनल कर लो, कुछ भी करो, सूत्र वही लगने वाला है। इसीलिए तो जब मुझे कोई भी पूछता है ना कि वैदिक मैथ्स में आप बेसिक में क्या सिखाओगे, बेसिक या एडवांस, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको जो सूत्र नॉर्मल थर्ड स्टैंडर्ड के बच्चों को आप मल्टीप्लिकेशन में सिखाओगे, वही सूत्र से आप केमिस्ट्री के भी सम सॉल्व करोगे, तो उसमें बेसिक क्या हो गया? सूत्र ही तो समझना है आपको। उसमें कुछ भी बेसिक जैसी चीज़ नहीं होगी। हाँ, लेकिन कब कहाँ यूज़ करना चाहिए, उतना कॉमन सेंस आना ज़रूरी है। अब अलजेब्रिक सम्स आप डिवीज़न मेथड से भी कर सकते हो। डिवीज़न करने के लिए देयर आर 12 मेथड्स, मल्टीप्लिकेशन करने के लिए 15 मेथड्स। तो ऑल इज़ कंबाइंड टुगेदर। सूत्र तो 16 ही लगे हैं ना। शास्त्र में कोई 16 से ज़्यादा तो कोई चीज़ दी नहीं है। तो ज़रूरी थोड़ी है कि हम सिर्फ 16 ही मेथड्स कर सकते हैं। वी कैन डू एवरीथिंग विद दिस 16 मेथड्स ओनली। क्या है आंसर? हेतल, आपका स्पीड स्लो हो गया है अभी बहुत ज़्यादा। प्रीवियसली, अच्छा, अच्छा, अच्छा। हुँ, बट मेक श्योर कि एटलीस्ट एवरीडे 15-20 मिनट्स निकालो, नॉट मोर देन दैट, बिकॉज़ इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड आल्सो। आप रोज़ का ब्रश अप कर लोगे ना 15 मिनट्स का, इट इज़ मोर देन इनफ। अच्छा, अरे बाप रे! ठीक है, हो जाएगा, डोंट वरी, प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा मैनेज। एग्ज़ैक्टली, करेक्ट। क्या आंसर मिला इसका? करेक्ट, okay. How come you got 27? 6 twos are 12. Okay, yes, yes. 6 twos are 12 and this. Correct, करेक्ट, करेक्ट, करेक्ट। ओके, ठीक है। अब एक चीज़ हमें क्लियर रखनी है इसमें। इफ सपोज़ वी आर डूइंग क्रिस क्रॉस, ठीक है? यहाँ पे तो हमने ये किया था। यहाँ पे हम ये क्रिस क्रॉस कर रहे हैं। सो यहाँ पे डिजिट हमारे पास नहीं है, 0x हम ले रहे हैं, करेक्ट? बट अलजेब्रिक में हम कैसे करेंगे? 0x मल्टीप्लाई बाय 3x स्क्वायर। सो हमारा आंसर क्या मिलेगा हमें यहाँ पे? बोलो। सॉरी, इट विल इट विल बी 3x क्यूब, नो? वेट, करेक्ट। सो इट विल बी 3x क्यूब। सो जैसे हमने यहाँ पे किया एग्ज़ैक्टली, यहाँ पे मैंने 0x ही दिया था ना आपको? यस। सो दिस विल बी 2 twos are 4, दिस इज़ व्हाट यू गॉट ना, 4 एंड दिस इज़ 0। सो 4x क्यूब आपने मुझे बोला या 7x क्यूब बोला?
ओके, 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 ठीक है। मैंने 7x क्यूब समझा, इसके लिए मैं आपको एक्सप्लेन कर रही थी ये चीज़ को। तो आपने मुझे अभी लास्ट में 17x बोला फिर तो। अच्छा, 17x ऑफ दिस थिंग यू हैव टोल्ड मी, आई थिंक दिस क्रिस क्रॉस। 27, ओके। यस, 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 यस। मैं 7x कंसिडर कर रही थी कि आप ये क्रिस क्रॉस का आंसर मुझे 7x दे रहे हैं। ठीक है, 27, यस, 27 इट इज़ करेक्ट, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है अलजेब्रिक विथ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऊर्ध्वाधर सूत्र, ये समझ में आया है अच्छे से आपको, करेक्ट? ठीक है, सो विल डू वन थिंग, यहाँ पे वाइंड अप करते हैं बिकॉज़ काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो गई है थर्ड बुक की हमारी, लेकिन बैकलॉग बहुत बढ़ गया है होमवर्क का। तो फर्स्ट आपको क्लियर करना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट ये मैं अभी भी रिपीट कर रही हूँ, नेसेसरी नहीं है कि आप वर्कशीट जितने भी है बुक्स एक्सरसाइज वो सारे के सारे सम्स करो, लेकिन हाँ, रिवीजन के टाइम पे आप 5 सम इसके कर लिए, 2 सम उसके कर लिए, ऐसे करके भी रिवाइज रोज का करते रहो। उसका स्किल्स आपका ब्रशअप्स करते ही रहना पड़ेगा आपको। तो फर्स्ट ये यहाँ तक के सारे सम्स क्लियर कर लो, तो फिर 1-2 टॉपिक बच रहे हैं तो भी थर्ड बुक के वो हम क्लियर करेंगे सो दैट थर्ड बुक भी हमारा नेक्स्ट डे जब हमारा होगा, उसमें क्लियर हो जाएगा। ऑलमोस्ट क्लियर हो सिर्फ 1 या 2 ही टॉपिक ऐसे बचे हैं जो हमें समझने हैं, लेकिन अगर वही हम अभी कर लेंगे ना सो ये पूरा वेंट ऑन टॉस हो जाएगा। सो बेटर अभी जितना सीखा है वो क्लियर हो जाए सो दैट एक कॉन्सेप्ट तक कॉन्संट्रेट कर पाएँ हम उसपे। वो कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक पे हम ईज़िली समझ भी पाएँगे और वो टाइम पे भी हम क्वालिटी काम कर पाएँगे। वो टाइम पे हम और 2-3 चीज़ें एक साथ सीखे ना, तो ज़्यादा जल्दी हमारा क्लियर हो जाएगा कोर्स। ठीक है? सो टिल नाउ जो भी सीखे हो वो पूरा प्रैक्टिस करो। कोई भी डाउट होता है यू कैन आस्क मी एनी टाइम। आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, आप मुझे क्वेश्चन का फोटो भेज दो कि मैं यहाँ पे अटकी हूँ, आई विल आंसर यू ऑन दैट। जो बुक मैंने वीडियो के रिकॉर्डेड वीडियोज़ में आज अपडेटेड फाइल भेज देती हूँ, उसको रेफर करो। अगर आगे का सेल्फ स्टडी आपको स्टार्ट करना है या पीछे का रिविज़न भी करना है, उसको आप रेफर करते जाओ। कॉन्सेप्ट वाइज़ वीडियोज़ है उसमें, तो वो उसमें भी अगर कुछ प्रॉब्लम होता है यू कैन आस्क मी फॉर दैट आल्सो। ठीक है? यस।